Good morning, students. Today we are going to start the second unit of our English grammar book, that is nouns. Okay, so noun is a chapter which we have been studying since almost class 1 and we are still studying in class 7. Okay, and we will keep on studying, I think, till class 8th or 9th because things keep increasing in it. Okay, so we all are very familiar with the definition of a noun. Noun क्या होता है? A noun is a name of a person, place, animal or thing. ठीक है, this is the commonest definition of noun. This is the most common definition of noun. Noun को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. ठीक है, तो noun is a name of a person, place, animal और thing. मतलब कोई भी जो नेमिंग ऑब्जेक्ट होता है, वो नेमिंग वर्ड होता है जो, वो हमारा होता है नाउन. ठीक है, अब नेम ऑफ अ पर्सन के नेम में मतलब जैसे राम, श्याम, अकबर, राम, श्याम, अकबर, पारुल, प्रिया. ठीक है, all these things are names of persons. All these are names of persons. Then there comes name of a person, place. The second thing is place. तो place के नाम जैसे आगरा, दिल्ली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. ठीक है, देन एनिमल के नेम्स जैसे वी ऑल नो नेम्स ऑफ एनिमल्स, और बर्ड्स they are dog, cat, lion, tiger, all these things. And then finally thing. So thing, the name of a thing. What does the word thing mean? Thing here refers to all the objects that we can see, that we can hear, that we can smell, that we can taste, that we can touch. That means all our five senses. Okay, and anything that we can think of, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, that is a thing. Okay, so noun is a name of a person, place, animal or thing. For example, Akbar was the greatest Mughal ruler of India. ठीक है, so इसमें noun क्या क्या है? The very first Akbar. ठीक है, Akbar is the name of the ruler. Okay, it is a proper noun. Then greatest Mughal ruler of India. Mughal is also the name, and India. Mughal means the name of the empire. Okay, so that is also the name, and India is the name of a place. ठीक, फिर honesty is the best policy. ठीक है, तो policy is also a thing and honesty is also a thing. Honesty is a thing to be felt, right? तो वो क्या होता है? Abstract noun. खैर, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में. ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, दिस यू हैव लर्नड इन क्लास 6. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. व्हाट आर दे? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. दीज आर द 5 कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी चीज का पर्टिकुलर नाम होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माया, मोहित, इंडिया, कोलकाता, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिका, द बाइबल, द होली गंगा. ठीक है, ये सब क्या हुए? प्रॉपर नाउन्स हुए, जो किसी चीज का एग्जैक्ट नाम है. ठीक है, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जो एक, आप कह सकते हो, लाइक सपोज बॉय. ठीक है, तो बॉय के नेम्स में अलग अलग नेम्स हो सकते हैं, राम, श्याम. ठीक है, बट boy denotes a word which is the word for all the names of boys. ठीक है, चाहे हम कितने भी boys के names ले लें, लेकिन वो लोग हैं क्या? What are they categorized under? They are categorized under the word boy. ठीक है, they are all boys. Similarly, girl, country, city, ocean, ये सारे होते हैं हमारे common nouns. Then the third type of noun is collective noun. ठीक है, collective noun क्या होता है? जो collection denote करे. एक ऐसा noun जो किसी भी चीज का collection show करे. ठीक है, for example, a class of students. Audience मतलब क्या होता है? जो लोग जैसे हम कोई प्रोग्राम हो रहा है तो जो लोग देखने वाले होते हैं, they are called the audience. ठीक है, so there's audience मतलब a group of people. ठीक, staff मतलब कहीं पे काम करने वालों का ग्रुप. ठीक, देन आर्मी, क्राउड. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स में.
Then there is abstract nouns. तो abstract nouns क्या होते हैं? Abstract nouns are those nouns which we can only feel, or we can see, hear, smell, touch, or not touch but taste. ठीक है, we cannot touch abstract nouns. वो चीज़ें जो हम लोग feel करते हैं, they are the abstract nouns. For example, fear, happiness, honesty, courtesy, truth. ठीक है. Then the final kind of noun is material nouns. तो material nouns क्या होते हैं? Material nouns, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, material, they are materialistic things. For example, nylon, jute, silk, wood, copper, silver, ये सारे होते हैं हमारे material nouns. ठीक है, material nouns में जैसे आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स मतलब जो चीज़ें हम लोग छू सकते हैं, आप जैसे कह सकते हो फर्नीचर, या फिर फर्नीचर जिससे बनता है, या फिर क्लोथ्स या क्लोथ्स जिनसे बनते हैं, ग्लास हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारे होंगे हमारे मटीरियल नाउन्स. ठीक है, क्योंकि दे आर ऑल मटीरियल्स, दे आर ऑल थिंग्स. ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेसिक 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 1 ऑन पेज नंबर 8, दैट इज योर होमवर्क. आप लोग खुद से करेंगे. नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोग को इसके आंसर्स भेजूंगी, यू कैन मैच इट. ठीक, एक्सरसाइज 1 ऑल्सो एंड एक्सरसाइज 2 ऑल्सो. नाउ बिफोर यू कैन डू एक्सरसाइज 2, वी हैव टू लर्न अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ये दोनों भी नाउन्स के ही टाइप होते हैं. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकें. ठीक है, दैट यू कैन काउंट, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. एंड जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, स्पाइडर, कैसल, एग, पार्क, स्टैचू, अम्ब्रेला, ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन्स. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, मिल्क, कॉफी, राइस, शुगर, विंड, पाउडर, एटसेट्रा. ठीक है, जो चीज़ है हम लोग काउंट ना कर सके. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी डॉक्टर्स, like a group of doctors standing somewhere. Okay, so you can count them, right? एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, that way you can count it. स्पाइडर भी you can count. castle क्या होता है? खूब जहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते हैं. ठीक है, they are called castles. तो castles भी हम लोग काउंट कर सकते हैं. eggs we can count. The number of parks we can count. The number of statues we can count. The number of umbrellas we can count. इसीलिए ये सब काउंटेबल नाउन्स में आएंगे. बट इलेक्ट्रिसिटी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना. सीनरी क्या है? वो देख के फील करने वाली चीज है. कैन वी काउंट इट? नो, राइट. देन मिल्क को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? कॉफी, राइस, शुगर, ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? राइस का एक एक दाना या शुगर का एक एक दाना तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते, इसीलिए दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके जो हैं प्लूरल भी बन सकते हैं. ठीक है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड कैन ऑल्सो हैव अ प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, डॉक्टर्स. ठीक है, स्पाइडर, स्पाइडर्स, एग, एग्स, पार्क्स. ओके, इन सब चीज़ों जो भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन सब के प्लूरल बन सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है. ठीक है, अदर देन दैट ऑल द प्रॉपर नाउन्स लाइक हिमालयाज, सचिन, चेन्नई, आगरा, दिल्ली, ताजमहल, ठीक है, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं. तो क्योंकि ये नेम्स हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग के, ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं. देन जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जो भी चीज़ें हम लोग फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, प्राइड, ट्रूथ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिटीज़ हैं, फीलिंग्स हैं. ठीक है, इनको हम लोग छू तो सकते नहीं हैं, सो दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. एंड जो भी मटीरियल नाउन्स होते हैं, मटीरियल नाउन्स लाइक वुड, मिल्क, टी, ग्लास, कॉपर, वुड, सिल्वर, गोल्ड, नाइलॉन, जूट, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं. ये सारे मटीरियल नाउन्स हैं एंड दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. सो बेसिकली व्हाट आई कैन से, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हाट आई कैन से इज ऑल द काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नाउन्स. ठीक है, दे आर ऑल सिंगुलर और प्लूरल, दोनों हो सकते हैं. बट ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्लूरल. And all the proper nouns, all the abstract nouns and all the material nouns are
अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आप लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझ आ गया होगा, तो आप लोग जो है exercise 2 भी as your homework you will do. Okay, now next is some nouns, they are both countable and uncountable. Okay, जो कुछ ऐसे nouns होते हैं जो countable भी होते हैं and uncountable भी होते हैं, ठीक। For example, the toast, the word toast, ठीक है। अब नीचे जो हमारा लास्ट टेबल बना हुआ है उसमें देखिए, mother has 2 toasts for breakfast. Mother has toast and tea for breakfast. अब जब हमने कहा 2 toasts, ठीक है, then the toasts are countable here because we have counted it and called it 2 toasts, 2 हैं इसलिए we can count। लेकिन जब हम कहते हैं mother has toast and tea, तो क्या हमें पता है कि उन्होंने कितना टोस्ट या कितना टी खाया या पिया? Can we count it? We cannot, right? That is why it is uncountable noun. The next is there was a hair on his coat. किसी के कोट पे, एक आदमी के कोट पे एक hair था, ठीक है। A single strand of hair that we know we can count, so here hair is countable. The next part is her hair is always untidy. अब क्या आप सर पे कितने बाल है गिन सकते हो? Hair is always untidy. Can you count the number of hairs that are untidy? No, right? तो यहाँ पे hair जो है हमारा uncountable noun हो गया। अब इसमें डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। जो एक ग्रुप की तरह देखा जाता हो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ऑनलुकर्स मतलब देखने वाले लोग, ठीक है, जो लोग देख रहे हो, ठीक है। तो क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, यहाँ पे फ्लॉक ऑफ ऑनलुकर्स नहीं हो सकता, या फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एक साथ हो, वहां पे क्राउड ऑफ बर्ड्स नहीं हो सकता। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो एक ग्रुप के साथ ही यूज होते हैं, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं यूज किए जा सकते। देन देयर इज अ हर्ड ऑफ काउज, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे हम लोग ट्रूप ऑफ काउज एंड हर्ड ऑफ सोल्जर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ये एक्सचेंज नहीं हो सकते। जिस ग्रुप के साथ जो कलेक्टिव नाउन आता है वही हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इनमें क्राउड, फ्लॉक, स्वार्म, बैंड, फ्लाइट, गैलेक्सी, फ्लीट, हर्ड, ट्रूप, स्ट्रिंग, पैक, बुके, पेयर, लाइब्रेरी, ये सारे जो है हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। I'll read all of them to you. A crowd of onlookers, a flock of birds, a swarm of bees, a band of musicians, a flight of stairs, a galaxy of stars, a fleet of ships, a herd of cows, a troop of soldiers, a string of beads, a pack of cards, a bouquet of flowers, a pair of dogs, a library of books, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर जितने आपके बुक में दिए हैं ये सारे आप लोग को याद करने हैं, लर्न ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब फाइनल जो हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं? Abstract nouns can be formed by adding suffixes to the word. Suffix मतलब जो word के end में कुछ ऐसे alphabets जो word या कुछ ऐसे words जो किसी word के end में हम लोग add करते हैं और उस word की meaning बदल जाती है या फिर उसी meaning में कुछ और add हो जाता है, ठीक है। By adding NESS at the end as, हमारा बेसिक वर्ड है काइंड, बेस वर्ड जो है हमारा वो है काइंड, एंड उसमें हमने NESS ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स काइंडनेस, एंड काइंड इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो किसी भी वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का पहला तरीका, वी कैन ऐड NESS एट द एंड। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में NESS ऐड कर देंगे तो वो बन जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। For example, kind, kindness, thick, thickness, bold, boldness, sick, sickness, lazy, laziness, etc.
ठीक है. द सेकेंड इज बाय एडिंग ION एट द एंड ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल एक्ट, एक्शन. ACT इज एक्ट, दैट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन जब एक्ट के लास्ट में हमने ION लगा दिया तो वर्ड बन गया एक्शन, एंड एक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वैसे ही एड, एडिशन, कंफ्यूज, कंफ्यूजन, क्रिएट, क्रिएशन, इन्वेड, इन्वेजन, फॉर्म, फॉर्मेशन, एटसेट्रा. ठीक है. देन द थर्ड वन इज बाय एडिंग ANCE, ENCE या MENT in certain words as appear, appearance, assist, assistance, resist, resistance, agree, agreement, judge, judgment, punish, punishment, patient, patience, present, presence, absent, absence, appoint, appointment, etc. ठीक है. तो ये भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नहीं थे, लेकिन इनके लास्ट में हमने सफिक्स ऐड कर दिया ANCE, ENCE या MENT, तो ये बन गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. बाय एडिंग TY और Y. फॉर एग्जाम्पल क्रूएल, क्रूएल्टी, लॉयल, लॉयल्टी, सर्टेन, सर्टेनिटी, गिल्ट, गिल्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, modest, modesty. फिर the last suffix that we add is this was the last suffix that we add, sorry. And the last thing is that कुछ words ऐसे होते हैं जो जिनमें कोई suffix या कोई prefix add नहीं करना होता है, मतलब वर्ड के लास्ट में या वर्ड के शुरुआत में कुछ ऐड नहीं करना होता है, वो irregular फॉर्म पे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ENCE या ANCE या MENT या NESS या ION ऐसा कुछ ऐड करना पड़े, वो एक इरेगुलर फॉर्म पे, मतलब उनके बारे में कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, एडवाइस. ठीक है. अब पहला वाला जो वर्ड है VISE, एडवाइस. ठीक है. ये एक वर्ब है, लेकिन ADVI जब SE की जगह हम लोग CE कर देते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन बिलीव, बिलीफ, चूज, चॉइस, डू, डीड, डिपार्ट, डिपार्चर, लाफ, लाफ्टर, फ्लाई, फ्लाइट, एटसेट्रा. ठीक है. जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स जो हैं इरेगुलर मैनर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं. अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इसमें जो वर्ड्स दिए हैं ये सारे वर्ड्स आप लोग को याद करने होंगे. ठीक है. एग्जाम में लिखने को आ सकता है कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ काइंड, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ रिपीट, मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एग्री, मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम ऑनेस्ट, या फिर मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम चूज. ठीक है. तो आप लोग को लिखना होगा कि उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एंड लिखने के लिए आप लोग को ये क्या करना होगा, याद करना होगा. ठीक है. तो ये जो भी टेबल है ये आप लोग याद कर लीजिएगा. अदर देन दैट, एक्सरसाइज 8 ऑन पेज नंबर 12, द लास्ट एक्सरसाइज, इसके क्लूज भी दिए हुए हैं, हिंट्स भी दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 13. ये एक्सरसाइज भी आप लोग की होमवर्क है. ठीक है. तो ये 3 एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 8, ये तीनों एक्सरसाइजेस आप लोग के होमवर्क है. आप लोग इसे करिएगा एंड नेक्स्ट टर्न पे इसके आंसर्स भी आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. और जितना मैं PDF में दे रही वो सारा आप लोग अपनी बुक्स में एंड जिस भी एक्सरसाइज के बगल में लिखा होगा डू इन कॉपी, वो सब कॉपी में कर लीजिएगा. ठीक है. जिस भी एक्सरसाइज की स्पेस बुक में है वो मोस्टली हम लोग बुक ही में करते हैं हमेशा. तो हमारे इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो हमें कॉपी में करनी होगी, दैट इज एक्सरसाइज 4. ठीक है. एक्सरसाइज 4 के अलावा आप लोग जो भी ये कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट दी हुई है ये आप लोग कॉपी में लिखेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये भी कॉपी में लिखेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. सो यू हैव टू राइट द F part, the collective nouns, only the table of nouns that is there. The G part, only how you will form abstract nouns by adding different suffixes.
एंड एक्सरसाइज 4। सिर्फ ये तीनों आप लोग को कॉपी में करना है, पीडीएफ में मैं लिख के भी भेज दूंगी, और बाकी सब कुछ आपका बुक में होगा। एक्सरसाइज 1, 2 एंड 8 आप लोग का होमवर्क है, जिसके आंसर्स आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।